Today we are going to deep dive into what IELTS is. So it will be a complete overview of what exactly is the IELTS examination pattern, what are the scoring methods of IELTS, how the band is calculated, and we are going to debunk all the myths surrounding IELTS examination. So let's get started and understand everything about IELTS. So what is IELTS? IELTS is International English Language Testing System, and it is used in predominantly majorly two things. One is for study and second is for work purpose. For both these two, there are two different examinations. First, let's talk about the organizations which acknowledges or accepts IELTS results. So there are 12,500 organizations worldwide which acknowledges, which accepts IELTS testing scores, and they could be universities, they could be employers and various immigration related authorities. Now examinations are of two types. One is an academic test and the second is general testing or general training, it is also called. So this examination checks four skills of yours, that is LWRS, or listening, writing, reading and speaking. Okay, so the test duration is 2 hours and 45 minutes. And now the point is, out of the two types of testing process, इन दो methods में से academic और general testing दोनों ही online examination रहते हैं. Both of them are conducted in test centers and both of them have the same format. दोनों का format same है. हाँ, the difficulty level में vary. इन दोनों की difficulty level जरूर थोड़ी अलग होती है. आइए समझते हैं. Let us deep dive into the two formats. Let us first cover academic test. Academic test की हम जब बात करें, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, it is clear from the name itself. Academics means related to study. Whether you are going in for undergraduate program, that is after your 12th standard, or you are going for postgraduate program, or you are going to for further higher educations like PhD, etc. And it is always used for various types of, in addition to academics, professional qualifications, whether you are going into for medicine, engineering and various other examinations or various other degrees. Now when we talk about the differences between the two examination, whether it is academics or general training, in reading there are major differences. In reading, when you're going in for academic examination, the difficulty level is higher, and majorly the reading texts which are used is academics. It could be from history, it could be from geography, it could be from the culture of a particular country. Usually IELTS involves a lot of articles related to those countries like American history, American culture, British, Australian, etc. The writing could be from various types of magazines, journals, history books, or various types of newspaper articles as well. Writing skills, specifically the task one, writing skills task one has a clear type of a pattern where it could be a pie chart, it could be a bar chart, it could be a tabular information where you have to understand, infer, आपको समझना है, and then you have to explain what you saw in that particular information, whether it is a pie chart, bar chart or a tabular format, right? So this is what academic test is all about. Now when we compare the same things, these 4 points in the non-academic part, that is the GT of the general training, which is said to be as GT in short, majorly it is used for migration purposes. Basically again they check your English language testing to make sure that जब आप दूसरे देश में जाते हैं, वहां आप इमिग्रेट हो जाते हैं, तो आप वहां बर्डन नहीं बने वहां सोसाइटी में. आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको समझनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, और अंग्रेजी में आप पुनः वार्तालाप कर पाए. यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट बैक. दैट इज व्हाई दे टेक दिस टेस्टिंग. सो द वर्क एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए ये सारी चीजें रहती हैं. थर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग डिफरेंसेस. अब जहां इन एकेडमिक द रीडिंग वाज स्लाइटली डिफिकल्ट एंड इट वाज मोर सो from the resources of academics, whereas in general training or GT, it will be more so from an everyday life. It could be a newspaper, it could be a notice, it could be various types of advertisement which we come across in everyday life. And similarly in writing, the writing task one, as it was different in the academics, there were a lot of pie, bar charts and tabular information. In this, there is simple letter writing. It could be formal, it could be informal, or it could be partially formal or semi-formal type of a writing. Now, there is one very important thing you need to understand. The listening and speaking sections in both are same. The only thing is you need to make sure that what are your use cases. If you are going for further education, then you have to always go for academic examination. And if you are going in for job or you are immigrating to a country which is English speaking, obviously they'll be checking your English competency, and for that you need to go for general training or general testing and or GT examination. This thing you have to ensure, and make sure that you do not make a wrong decision. Once you do it, nobody will be responsible. You have to again sit back in that condition. I am sorry for that. Now, let us get into deep dive into the examination structure.
As we have already discussed that they check the 4 skills starting from the listening. The duration of the listening examination is 30 minutes and 10 minutes is given for transferring your answers. Now what happens is there are recordings. There are 4 types of recordings which go simultaneously one after another. There is no break between them. आपको 4 रिकॉर्डिंग सुननी होगी एंड ये रिकॉर्डिंग एक के बाद एक प्ले करेंगे. देयर विल बी अ सेटअप जहां आपको ईयरफोन मिलेगा और वहां आपको टेबल रहेगी, आपको रिकॉर्डिंग सुननी है और क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस को रीड करना, रिकॉर्डिंग सुननी है और आंसर मार्क करने. यानी इट इज अ process where you have to do all the things together. You have to listen, you have to read the questions simultaneously along with the listening. It means जब आप पढ़ रहे हैं questions को और आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा आप पॉज कर सकते हैं. The recording will continue, so you have to be very very active and agile. आपको एकदम अलर्ट रहना है, आपको listening के साथ साथ में questions को read करना है, साथ साथ में जो जो वहां पे बात चल रही है उसी के हिसाब से questions को साथ साथ questions के साथ में आपको मतलब पैरेलली चलना है. आपको ऊपर नीचे हो गए तो आपके वो फिर रिकॉर्डिंग आगे चली जाएगी और आपके क्वेश्चंस पीछे रह जाएंगे और आपका पूरा का पूरा लिसनिंग जो है सेक्शन खराब हो सकता है. सो यू हैव टू मेंटेन द स्पीड ऑफ बोथ द टू टुगेदर. तो आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे 30 मिनट्स के अंदर और साथ साथ में लिसनिंग के साथ साथ में आपको अपने आंसर्स भी मार्क करने होंगे. लेकिन आपको 10 मिनट्स अपने आंसर्स को ओएमआर में मार्क करने का टाइम मिलेगा. याद रखिएगा 4 रिकॉर्डिंग्स रहेंगी वन आफ्टर अनदर, कोई ब्रेक नहीं रहेगा इसके बीच में. अब हम बात करते हैं रीडिंग की. रीडिंग वाला सेक्शन लिसनिंग वाले सेक्शन के 30 मिनट्स तो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, 10 मिनट्स जो है आपको स्कोर मार्क करने के लिए आई मीन आंसर मार्क करने का मिल रहा है. 40 मिनट्स में टोटल सेक्शन होता है लिसनिंग का, लेकिन हमारी जो रीडिंग सेक्शन है वो 1 आवर यानी 60 मिनट्स की. इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं. आपको एकेडमिक वर्सेस जीटी के डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है. जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग में एकेडमिक में डिफिकल्टी लेवल हाई होता है और उसका एकेडमिक कंटेक्स्ट होता है, एकेडमिक से लिए जाते हैं ज्यादातर आर्टिकल्स, जबकि जनरल ट्रेनिंग के अंदर या जीटी के अंदर एवरीडे लाइफ से लिए जाते हैं. यानी लैंग्वेज जो होती है वो ईजियर होती है, उसमें लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है. अब हम बात करते हैं राइटिंग की. रीडिंग की तरह ही राइटिंग भी 60 मिनट्स का होता है, लेकिन राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2. यहां पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. टास्क नंबर 1 जो है वो इट इज सजेस्टेड दैट यू शुड डू इट इन 20 मिनट्स एंड टास्क नंबर 2 यू शुड डू इट इन 40 मिनट्स. नाउ यू विल बी वंडरिंग के व्हाई वी आर गिविंग डबल द टाइम टू टास्क 2. द रीजन इज वेरी सिंपल. कारण बड़ा आसान है. टास्क 2 का जो वेटेज है वो टास्क 1 के मुकाबले डबल रहता है. यानी एक नंबर अगर टास्क 1 में मिल रहा है, मैं एक नंबर की बात कर रहा हूं या परसेंटेज की बात कर लेते हैं, एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं. टास्क 1 में अगर 1 नंबर मिल रहा है तो टास्क 2 में 2 नंबर मिलेंगे, यानी डबल वेटेज. तो इसीलिए हम टाइम भी डबल देते हैं. और यहां पे एक स्ट्रैटेजी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमेशा टास्क 2 पहले कीजिए फ्रेश माइंड के साथ में ताकि आप बेटर कर पाए, उसका वेटेज भी हाई है. फिर टास्क 1 कीजिएगा. टास्क 1 कंपैरेटिवली इजी भी होता है. अब आपको टास्क 1 के अंदर जो इजियर है 20 मिनट्स में करना है, 150 मिनट्स एंड लेस देन 150 मिनट्स में उसमें आपको आंसर लिखना है. और इसी तरह टास्क 2 के अंदर 250 मैंने मिनट बोल दिया, मिनट नहीं वर्ड्स है. टास्क 2 के अंदर 250 वर्ड्स एंड लेस में आपको जवाब देना है. आप यहां समझ लीजिएगा हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा 150 या 250 से नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए. जो हमारा मार्जिन है वो 2 3 4 5 वर्ड के अंदर अंदर होना चाहिए. इनफैक्ट आई रिकमेंड 2-3 वर्ड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. यानी कोशिश कीजिए 153 ना हो, वो 147 हो, 148 है तो चलेगा. इसी तरह 255 नहीं होना चाहिए, 246 47 48 होगा तो चलेगा. यानी हायर साइड में किसी कंडीशन में नहीं हो. अब आप बोलेंगे क्या सर मुझे गिनना होगा लिखते वक्त? नहीं, आप लिखते वक्त नहीं गिनेंगे. आपकी घर पे जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आदत पड़ जाएगी कि व्हेन आई राइट how many words are there in my typical line, so in 8 lines or 10 lines or in 12 lines my word limit is touched. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. अब हम आखिरी फॉर्मेट में आ रहे हैं. हमने लिसनिंग की बात कर ली, रीडिंग की कर ली, राइटिंग की कर ली, LRW की बात कर ली. अब S पे आते हैं. तो 4 स्किल्स है LRWS. अब हम स्पीकिंग की बात करते हैं. स्पीकिंग जो है उसका ड्यूरेशन 11 to 14 मिनट्स रहता है और ये 3 पार्ट्स में रहती है. इसको हम आगे डिटेल में लेंगे. ये इन पर्सन रहती है, ये कैमरा के सामने रहती है. जैसे अभी मैं मेरे लैपटॉप के सामने हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, वैसे ही सेशन रिकॉर्ड हो सकता है. आप ऑनलाइन कैमरा पे एग्जाम दे सकते हैं या इन पर्सन दे सकते हैं. आपके सामने एग्जामिनर बैठा रहेगा, वो आपसे 3 फेजेस में बात करेगा, आपको उसका जवाब देना है. अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि टेस्ट डे में क्या होता है. लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये तीनों एक साथ चलते हैं, वन आफ्टर अनदर, और इसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम रहता है. LRW यानी सबसे पहले लिसनिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, फिर राइटिंग रहेगा. तीनों सेक्शन वन आफ्टर अनदर रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलता उसके बीच में. और स्पीकिंग जो है वो उस दिन नहीं होता जिस दिन ये LRS रहते हैं, यानी लिसनिंग, रीडिंग और राइट. LRW होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है. तो स्पीकिंग जो होगा या तो 7 डेज पहले होता है या 7 डेज बाद होता है. कभी आप बहुत ही लकी रहे तो एक दिन पहले एक दिन बाद में भी हो सकता है, बट यूजुअली इट इज 7 डेज बिफोर और 7 डेज लेटर. यानी आप जब भी आइल्स का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको, अगर आप बहुत लकी नहीं है तो आपको 2 बार वेन्यू पे जाना पड़ेगा. या तो आपका सेम शहर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको ट्रेवल प्लान उसी हिसाब से करना रहेगा. ये बात ध्यान में रखिएगा.
आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके लेट अस डीप डाइव इनटू ऑल द सेक्शनल डिटेल स्टार्टिंग विद एल टेस्ट और लिसनिंग टेस्ट। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, देयर विल बी 4 रिकॉर्डिंग्स व्हिच विल बी प्लेड वन आफ्टर अनदर, कोई गैप नहीं रहेगा। ये रिकॉर्डिंग अलग अलग तरह की होती है। आमतौर पे 2 रिकॉर्डिंग्स जो होती है वो मोनोलॉग होती है, यानी अकेला एक व्यक्ति बोल रहा होता है। मोनो मींस वन, लॉग मींस टॉक। तो एक व्यक्ति मोनोलॉग यानी वन पर्सन इज स्पीकिंग, एंड अदर्स कुड बी डायलॉग्स वेयर इट कुड बी वन एंड टू पर्सन, और देयर कुड बी वन पर्सन स्पीकिंग एंड 3-4 अगेन पार्टिसिपेटिंग। अ टीचर माइट बी स्पीकिंग टू 3-4 ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड दे आर अगेन कम्युनिकेटिंग। देयर कुड बी अ डिस्कशन और अ चिट चैट बिटवीन देम। सो जो मोनोलॉग्स रहते हैं वो एक व्यक्ति होता है, और डायलॉग जो रहते हैं वो मल्टीपल लोग रहते हैं। तो मोनोलॉग में क्या होता है, मोनोलॉग में यूजुअली एक एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई कमेंट्री हो सकती है, कुछ भी, किसी भी तरह की सिंगल पर्सन टॉक हो सकती है। अब ड्यूरेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया 30 मिनट्स का रहता है, और 10 मिनट्स आपको अपने आंसर पेपर से ओएमआर में, आंसर शीट में ट्रांसफर करने का आपको 10 मिनट का समय मिलता है। ये सवाल कैसे होते हैं, अब अगला ये आता है। 40 मिनट्स में आपको जो क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे वो एमसीक्यू होते हैं, जो आप बचपन से ही एमसीक्यू मास्टर चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो एमसीक्यू रहता है। दूसरा मैच द फॉलोइंग रहता है, दोनों तरफ इनपुट्स हैं, आपको उनको मैच करना है। फिर कोई किसी तरह का मैप या डायग्राम बना रहेगा, उस मैप डायग्राम के थ्रू आपको पूरी की पूरी टॉक के अंदर लेके जाएंगे, आपको उसको समझना है। देयर विल बी क्वेश्चंस एंड इनपुट्स, एंड आपको मैप और डायग्राम को देख के आंसर देना है। किसी भी तरह की टेबल में हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है, कोई नोट हो सकता है, उस नोट्स पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस कंप्लीशन भी होते हैं, यानी एक सेंटेंस होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको उसको फिल करना है, कंप्लीट करना है। यानी आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, आपको याद रखना होगा कि क्या बात हुई। यू नीड नॉट हैव टू रिमेंबर, लिटरली मेमोराइज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो आप ध्यान से सुन रहे होंगे अलर्ट मैनर में, तो आपको मेमोरी नहीं करनी है, बट आप उसका जवाब दे पाएंगे। अब जो मार्किंग रहती है 1 मार्क पर करेक्ट क्वेश्चंस रहता है, जो कि 1 to 9 के बैंड में कन्वर्ट रहता है। 0 तो नहीं रहता, 1 से 9 बैंड में कन्वर्ट किया जाता है। और स्कोर्स जो होते हैं वो 1 में या हाफ में होते हैं, यानी किसी को फॉर एग्जांपल 6 बैंड मिल सकता है, किसी को 7.5 मिल सकता है, यानी या तो 1 का मल्टीपल होगा या 0.5 का मल्टीपल होगा। ये क्या चेक करते हैं, आपकी चेक करते हैं कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिस्कशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स विच वर डिस्कस इन द ऑडियो, वर यू एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशंस और टॉक दे डिड, व्हाट टाइप ऑफ व्यूज दे हैड, स्पीकर का क्या इंटेंशन था, उसका क्या पर्पस था, क्या वो कहना चाह रहा, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, व्हाट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू विज़-अ-वी द अदर पर्सन, वो दूसरे व्यक्ति के मुकाबले दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे थे। बेसिकली आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर वाज सेइंग और व्हाट द स्पीकर वाज ट्राइंग टू स्पीक आउट, ये आपको समझना होगा। इन एन एवरीडे लाइफ हम भी ये करते हैं मित्रों, हम हमेशा एक दूसरे को समझने के लिए अपनी बात कहते हैं, तो हम बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिसनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए लिसनिंग टेस्ट रहता है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं, हम ज्यादातर लोग जो स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं वो लिसनिंग में पुअर होते हैं। गॉड हैज गिवन अस 2 ears and 1 mouth, वी शुड यूज इन द सेम रेशियो। हमें अपने लिसनिंग को बहुत अच्छा करना होगा, शार्पन करना होगा विद प्रैक्टिस। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें ट्रेन कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्शन 2 में रीडिंग टेस्ट की बात करते हैं। रीडिंग टेस्ट 60 मिनट्स का है, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए। 40 क्वेश्चंस रहेंगे, वापस वही फॉर्मेट है, एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। नॉट गिवन का मतलब होता है समटाइम्स द ऑप्शन सेज नॉट गिवन, यानी वो इंफॉर्मेशन नहीं था या डेटा अनअवेलेबल था। और इसके अलावा मैच द हेडिंग्स जो पिछली बार था, सेंटेंस कंप्लीशन और शॉर्ट आंसर्स भी रहते हैं। शॉर्ट आंसर्स में आपको एक लाइन में तो छोटे से में लिखना होगा जवाब। एकेडमिक में जो हमारे जो रीडिंग के पार्ट रहते हैं वो बहुत आसान लैंग्वेज ना होकर के थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज होती है, और जनरल ट्रेनिंग या जनरल टेस्टिंग के अंदर थोड़ी सी एवरीडे लाइफ की होती है, न्यूज़पेपर लेवल की होती है। तो आप देख सकते हैं एकेडमिक के अंदर बुक्स, जर्नल्स और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट है, और जनरल ट्रेनिंग के अंदर जो है एवरीडे लाइफ से इंफॉर्मेशन निकलती है, यानी वो ईजियर है। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि बिकॉज जनरल ट्रेनिंग या जनरल जीटी जो है वो ईजियर टेस्ट है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सही करने पे आपको बैंड बेटर मिलता है। यानी इफ 2 people have done 30 writes each and if one is doing academic and second is doing general training, तो 30 मार्क्स सेम होने पे जनरल ट्रेनिंग वाले को बैंड लो मिलेगा, यानी जनरल ट्रेनिंग में ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होने पे ही हायर बैंड मिलता है। ये आप बहुत ख्याल रखिएगा, जनरल ट्रेनिंग का रीडिंग का स्कोर हायर होने पे बैंड मिलता है एज कंपेयर टू एकेडमिक, यानी एकेडमिक डिफिकल्ट होता है, कम सही में भी हायर बैंड मिल जाता है, जनरल ट्रेनिंग के अंदर ज्यादा सही होने पे बैंड बराबर मिलेगा या हायर मिलेगा। उसके बारे में भी हम आगे डिटेल बात करेंगे।
अब हम थर्ड सेक्शन में आ रहे हैं, राइटिंग टेस्ट। राइटिंग टेस्ट रीडिंग की तरह ही, जैसे रीडिंग 60 मिनट्स का था, ये भी 60 मिनट्स का है, और उसमें उसी 60 मिनट में हमें सारी चीजें करनी है। हमें टास्क 1 और टास्क 2 करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। टास्क 1 ईजियर होता है, 20 मिनट्स में उसे कंप्लीट करने का हमारा फोकस होना चाहिए, एंड टास्क 2 इज डिफिकल्ट विद डबल द वेटेज, तो हमें उसे 40 मिनट्स में करना है, और गिवन वर्ड लिमिट का हमें ध्यान रखना है। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड द वर्ड लिमिट, रादर वी शुड बी स्टिकिंग टू द वर्ड लिमिट। बहुत नीचे नहीं जाना, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, दैट कुड बी सुइसाइडल। याद रखिएगा, टास्क 2 का वेटेज टास्क 1 के मुकाबले डबल होता है, इसलिए टाइम भी डबल देना है। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद टास्क 2, राइटिंग टास्क 2, एंड देन मूव टू टास्क 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकिंग टेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। 11 to 14 मिनट्स का टोटल स्पीकिंग टेस्ट होता है, हमेशा रिकॉर्डेड रहता है, ऑडियो विजुअल्स, और ये डिलीवर्ड होता है इन पर्सन या ऑनलाइन वीडियो। कुछ कंट्रीज में ऑनलाइन भी होता है, इंडिया में हम इन पर्सन ही करते हैं। पार्ट 1 में आमतौर पर एग्जामिनर पूछता है, ओके टेल मी अमरदीप, who are you or where are you from, tell me which city you belong to, what you do, what is your profession. So the first set of question is a handshake type of a question. What is a handshake? To develop a rapport between each other. तो आपको वो काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आपके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसका जवाब आपको अच्छे से देना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। फिर वो आपको एक टॉपिक देते हैं जिसमें 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम भी दिया जाता है, और उस टॉपिक पे आपको 1 से 2 मिनट में बोलना होता है। ये टॉपिक कैसे होता है? प्री डिसाइडेड कार्ड्स रहते हैं, उस पर टॉपिक रहता है, और टॉपिक के कुछ सजेस्टिव क्यूज होते हैं। क्यूज यानी कुछ इनपुट्स रहते हैं जो आपको यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बोला कि आपको यू हैव टू टॉक अबाउट लेट्स से अ बिजनेस मीटिंग, ओके, तो उस बिजनेस मीटिंग से रिलेटेड 3-4 क्यूज रहेंगे कि आपको इन योर स्पीच ऑफ 1 to 2 मिनट्स, इन योर टॉक ऑफ 1 to 2 मिनट्स अबाउट बिजनेस मीटिंग, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज डिटेल्स विच इज गिवन इन योर कार्ड। तो जो कार्ड में दिया गया है उसको आपको अपने टॉक के अंदर शामिल करना है। यू हैव टू बी केयरफुल, अगर वो आप मिस कर जाते हैं तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट होंगे। वट एवर इज गिवन इन द क्यू कार्ड, आपको उसे टास्क कार्ड भी कहते हैं, आपको उसको इनकॉर्पोरेट करना है, यानी यूज करना है अपने स्पीकिंग में। पार्ट 3, डिस्कशन। देन देयर इज अ जनरल डिस्कशन, एंड यूजुअली दिस डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द पार्ट 2। जो आपको टास्क कार्ड दिया गया है उससे रिलेटेड जो आप 1 to 2 मिनट में बोलते हैं, जो एग्जामिनर है आपको समझ लेता है व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर यू आर, आपने कैसा परफॉर्म किया। देन देयर इज अ क्रॉस क्वेश्चन, and it all rests on the examiner. Sometimes there is the examiner in part 3 only ask questions related, cross questions related to whatever you spoke, and sometimes the examiner may take you further to that, beyond that. यानी जो आपने बोला, he might be or she might be satisfied with it and might ask some more secondary questions related to, और वो secondary questions abstract भी हो सकते हैं, imaginative भी हो सकते हैं, और थोड़े से logical या analytical भी हो सकते हैं। अब आपको यहां समझना होगा कि आपको टेस्ट कैसे करते हैं। हाउ यू प्रोनाउंस, व्हाट इज योर डिक्शन, how clearly you speak, how the words are thrown from your mouth, is your pronunciation better, how is your vocabulary, is your sentence structuring better, are you grammatically correct? These are the things which they test. So make sure that you understand all these things which are tested. So speaking के समय, practice के समय, you have to work on your fluency, your coherency, that is your clarity, how good you are in vocabulary, that is called lexical resource. आपकी vocabulary कैसी है, कि आप सही word का सही जगह इस्तेमाल करते हैं, आपकी grammar correct है कि नहीं, आपकी grammar की रेंज कितनी है, और हाउ एक्यूरेट यू आर इन योर ग्रामर एज वेल एज सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, कि आप सही वाक्य बोलते हैं या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलते हैं, और आपका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन कैसा है, क्या आप स्पष्ट सुनाई पड़ते हो या क्लैरिटी नहीं है आपकी बात में, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही है कि नहीं। इन्हीं से ज्यादा नंबर मिलते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में बच्चों में प्रॉब्लम रहती है कि उनकी क्लैरिटी सही नहीं रहती। जैसे नॉर्थ के बहुत सारे स्टेट्स में प्रोनाउंसिएशनल इशू है, इसी तरह साउथ में भी बहुत स्टेट्स में प्रोनाउंसिएशनल इशू है। तो हमें ध्यान रखना रहेगा, भारतवर्ष में सब जगह कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेंथ है, कोई वीकनेसेस है। मेरे अनुभव से मैंने देखा है देयर आर सम स्ट्रेंथ्स एंड सम वीकनेसेस पैन इंडिया, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेस एंड बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की और ड्यूरेशन क्या रहता है। एग्जामिनेशन जो जैसे मैंने आपको बताया 2 घंटे 45 मिनट का, और इस 2 घंटे 45 मिनट में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग LRW ये एक दिन होता है और वो खत्म हो जाता है एग्जामिनेशन। और स्पीकिंग जो 11 से 14 मिनट्स का रहता है, या तो एक दिन आगे पीछे या 7 डेज आगे या पीछे रहता है, उसका ड्यूरेशन फिक्स है 11 to 14 मिनट्स। और हमने पहले जाना था, नीचे आइए की ड्यूरेशन फैक्ट्स में, 10 मिनट्स ट्रांसफर का टाइम मिलता है, 40 मिनट्स लिसनिंग, 40 मिनट्स रीडिंग और 60 मिनट्स हमें राइटिंग का मिलता है। तो टोटल हमारा जो ड्यूरेशन है वो इस तरह से मिला करके 2 hour 45 मिनट्स हो जाता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स। अब हम आइल्स स्कोरिंग सिस्टम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये 1 से लेकर 9 बैंड में होता है। अगर आपका स्कोर एज लो एज 1 आ रहा है तो इसका मतलब नॉन यूजर की कैटेगरी में आप आ जाते हो, और अगर आप 9 तक पहुंच जाते हो यानी आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आ जाते हो।
मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, बैंड अगर 1 आता है तो आप नॉन यूजर कैटेगरी में आ जाते हैं, और अगर 9 आता है तो आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आते हैं, और आपकी प्रोफिशिएंसी उसी ग्रेड में रहती है। आपका जो बैंड रहेगा वो हमेशा हर सेक्शन में सेपरेट मिलता है, और एक ओवरऑल बैंड मिलता है। इसको भी हम आगे जानेंगे, सेक्शनल बैंड और ओवरऑल बैंड कैसे कैलकुलेट होता है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, बैंड का स्कोर 1 या हाफ के मल्टीपल में रहेगा। कंपोनेंट जो रहता है वो हमेशा याद रखिएगा, सब चीज बैलेंस रहती है, सिर्फ राइटिंग के अंदर याद रखिएगा, राइटिंग टास्क 2 का वेटेज 1 से डबल रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं कि बैंड कैसे कैलकुलेट करता है। अब आपको जैसे पहले मैंने बताया, चारों सेक्शंस में अलग अलग बैंड मिलता है और उनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर स्कोरिंग पे जाएंगे। कंप्लीट एग्जामिनेशन में आप देखिए, चारों कॉम्पिटेंसीज के अंदर एक कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिले, चारों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, तो स्कोर आ रहा है 6.625। तो नियरेस्ट हाफ उसका क्या है, 6.6 किसके पास है, 6.5 के पास है या 7 के पास है, तो 6.5 के पास में, तो स्कोर 6.5 आ जाएगा। अगर ये 6.925 होता तो ये 7 हो जाता। यानी समझ लीजिएगा, फुल और हाफ में नियरर जो होगा वहां चला जाएगा। 0.5 के आसपास है तो 0.5 चला जाएगा, होल के आसपास है तो होल के आसपास जाएगा। इसी तरह ऊपर देखिए, एवरेज जो स्कोर है उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जैसे 6.25 आया तो 6.5 हो जाएगा, 6.75 आया तो 7 की तरफ चला जाएगा हायर साइड में, और 6.10 है जो कि बहुत 6 के पास में, तो लोअर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से स्कोर बैंड में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। अब हम स्कोर कन्वर्जन फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। ये स्कोर कन्वर्जन फॉर्मूला आपको सारा आइल्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन बुकिंग के बाद में किट आएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ समझने की जरूरत है। लिसनिंग, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग को यहां कंपेयर किया गया। पहले हम लिसनिंग ले लेते हैं जो कि कॉमन है। अगर आप रॉ स्कोर यानी 16 करेक्ट होते हैं तो करीब बैंड 5 आता है, 23 होते हैं तो 6, इसी तरह 30 पे 7 और 35 पे 8। एकेडमिक में देखिएगा यहां डिफरेंस असली आएगा, 5 बैंड में 15 राइट है और 4 बैंड में 15 राइट है, यानी एक बैंड का फर्क है जीटी के अंदर, उतने ही राइट है, लेकिन एकेडमिक में एक बैंड ऊपर मिल रहा है। क्योंकि जीटी में रीडिंग इजी होती है तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पे भी आपको लोअर बैंड मिलता है। आप 8 में आ जाइए, लोएस्ट में हमने कंपेयर किया, अब हाईएस्ट में कंपेयर कर लेते हैं। 8 बैंड में देखिए 35 करेक्ट होने पे 8 बैंड मिल रहा है एकेडमिक में, और जीटी में 35 पे 7 बैंड ही मिल रहा है, यानी एक बैंड का डिफरेंस है। आप अगर जनरल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, यानी आप एमिग्रेशन या जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, और आप वो कर सकते हैं बिकॉज पेपर इजी होता है। हमेशा याद रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं। की डिफरेंसेस एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में वापस समझ लेते हैं। एकेडमिक रीडिंग और जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में यहां दिया गया है, एकेडमिक रीडिंग में कम सही में भी ज्यादा नंबर मिलते हैं, और जीटी के अंदर ज्यादा सही में कंपैरेटिवली लोअर बैंड मिलता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जीटी के एग्जाम में ज्यादा सही करने होंगे, यानी आप इजियर क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज समझनी जरूरी है कि एकेडमिक रीडिंग जो होती है उसमें वोकेबलरी थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, और जीटी के अंदर वोकेबलरी इजी रहती है, और एवरीडे लाइफ से, कॉन्टेक्स्ट से इनपुट्स आते हैं जो कि आपको रीड करने होते हैं। जबकि एकेडमिक्स में थोड़ी डिफिकल्ट होता है, एकेडमिक सोर्स होता है जो कि कोई हिस्ट्री बुक हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। Now let us discuss the various myths around IELTS examination. First myth: it is easier to take test in some countries. Absolutely wrong. There's no difference whether you are taking examination in A country, B country or C country. Everywhere it is a standardized test, the difficulty stays the same. Second, you need a British or American accent. No, not at all. Am I speaking in British or American accent? No, I'm speaking in an Indian accent. So be proud of whatever you are. यू शुड बी एज पर योर बैकग्राउंड। जैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं वैसे ही आप बोलिए, आपको कुछ भी लास्ट मोमेंट पे अपने आप को फेक नहीं करना है, आर्टिफिशियल नहीं बनाना है। यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। मेक श्योर दैट यू शो योर बेस्ट कॉम्पिटेंसी। अब हम तीसरा मिथ लेते हैं, यूजिंग बिग वर्ड्स और हाई फ्लाइंग और डिफिकल्ट वर्ड्स विल इंप्रूव माई स्कोर। रॉन्ग। यू शुड बी करेक्ट, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, योर यूज शुड बी करेक्ट, योर यूसेज शुड बी करेक्ट। स्पीकिंग हाई फ्लाइंग वर्ड्स आर प्रोबेबली मेक क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू बिकॉज यू माइट रॉन्गली यूज देम। तो जो आपको आता है वो अच्छे से करना है, बशर्ते कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए अननेसेसरली आप मुश्किल वर्ड्स का यूज करें। Fourth myth: examiners are biased. Absolutely wrong. They are trained examiner. It's a standardized examination and everything is recorded. So they are accountable. They are answerable to the examination body. They cannot be any biased. 1% भी किसी तरह की biasness या बदमाशी नहीं होती है. Everything is very fairly done. IELTS is harder than other tests like TOEFL. Wrong. It is a completely standardized examination. Your performance depends upon your practice. The more practice you do, the better will be your performance. See, it is a very comparatively what I can say,
subjective type of a discussion. Some people who have done good preparation, they may say IELTS is very easy. Others who have not done good preparation will say it is a difficult examination. So it all depends, and it's a very subjective statement. How you have prepared is going to decide how the examination was to you. Myth: AI marking is fairer. No, it is humanized, standardized marking, and they are trained for that. And in fact, it is just the opposite. AI cannot understand the emotion, whereas human beings can easily understand the facial expressions, emotions, and your confidence level. As per that, only the scoring is given in all the section, majorly in speaking. So let us have some of the quick tips how you should work upon your preparation. You should understand the format well. I've already given you a bird eye view of all the sections, complete information about IELTS examination. अब आपको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और उस पे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. आपको ऑफिशियल जो IELTS का आपको किट मिलेगा उसके हिसाब से आपको बैंड समझना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. आपको अपनी राइटिंग पे बहुत ख्याल रखना है कि मुझे 40 मिनट्स हायर वेटेज यानी टास्क 2 पे देना है और 20 मिनट्स टास्क 1 पे देना है, और उसी ड्यूरेशन में गिवन वर्ड्स में उसे खत्म करना है विद राइट ग्रामर, राइट वोकेबलरी, राइट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग. स्पीकिंग में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नेचुरल, you do not sound artificial, you should not fake a accent, you should be as natural as possible and should be proud of your background. आपको hesitate नहीं करना है, आराम से relax होके, without taking a lot of pressure on yourself, without thinking sideways, without pressurizing yourself, you have to speak as naturally you are speaking at home or with your friends. Listening and reading में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि you have to ensure that you understand the art of skimming or skipping. What is skimming or skipping? Let me give you an idea in a very short period. For example, there is a paragraph. You should be able to look at the paragraph or the write-up at a comparatively basic level. आपको फाइन ट्यून करके रीड करना आना चाहिए कि हाँ, विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड विद द सेम फोकस, यू शुड बी एबल टू लुक एट द कंटेंट एंड स्किम द डेटा. स्किम यानी आपको की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ के आप जवाब दे पाए. It is not important that you pay equal attention to everything. Like a small article पे भी उतना ही attention दें जितना की contextual word पे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको देखना होता कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा attention देना है, कौन सी चीज अनइंपॉर्टेंट है यानी article prepositions you can avoid them. Look at the idea and that is called skimming or skipping. क्या चीज skip करनी है, छोड़नी है, और क्या चीज skim करनी है वो आपको समझना होगा. काम की चीज, मक्खन को मट्ठे से अलग कर लेना है, छाछ से मक्खन को अलग कर लेना है, काम की चीज पे फोकस करना है. वोकेबलरी के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. आपको कॉन्टेक्स्ट, आपको वर्ड मीनिंग पे नहीं चलना है, वर्ड किस तरह से वहां यूज हो रहा है उसको समझना है, और आपको राइट वोकेबलरी का यूज करना है. Now, what are the key takeaways? We have to understand that there are 4 sections and we have to be very careful about the timing around all those 4 sections, and we should be very sure about the scoring pattern and choose the right type of an examination. Whether you are going for academics, so you need to go for IELTS academic, and if you're going for immigration or job, then you have to go for general training or GT. Do not get into various types of myths. You should be clear of the various types of myth and avoid falling trap to these types of myths and confusions and various types of rumors which people spread. The next step is you should book your test after a lot of practice. Unless until you are confident about your performance, unless until you are confident about your outcome, आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अच्छे बैंड ले लेंगे, क्योंकि जब आप स्कोर निकालते हैं तो रोज आप घर पे अपने की से अपना बैंड निकाल सकते हैं. तो डेली बेसिस पे डेवलप दैट हैबिट ऑफ कैलकुलेटिंग द बैंड. जब आप खुद का अपना रोज स्कोर देख के, नंबर ऑफ मार्क्स कितने आए देख करके बैंड निकालते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं 35 पे हूं तो मेरा 8 के आसपास हो रहा है, अगर मैं 30 हूं तो मेरा 7 बैंड के आसपास होगा आउट ऑफ 40. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मित्रों. तो आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो ये सब चीजें देखने के बाद में ही आपको अप्लाई करना चाहिए. टेस्ट बुक करने के साथ ही आपको डेट्स मिल जाएंगी कि आपका कब स्पीकिंग है और कब बाकी के तीनों पैटर्न है, आई मीन तीनों सेक्शंस हैं. उस हिसाब से आपको अपना ट्रैवल प्लान दोनों बार का एडवांस में बनाना है ना. डोंट प्लान your travel at the 11th hour, you could be in trouble. I've seen people really messing up with this. और ये बहुत ज़्यादा सस्ता एग्जामिनेशन नहीं है, 17-18 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, डॉलर में इसकी कॉस्ट होती है. वो इन्फॉर्मेशन आप सब डिटेल आसानी से निकाल सकते हैं. तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन प्लान होगी, राइट. और आपको इंस्टीट्यूशन के रिक्वायरमेंट समझते से ही प्रैक्टिस करनी है. और आप बहुत सारा फ्री प्रैक्टिस मटेरियल आपको आइल्स किट में मिलेगा, और हमारे भी आप टच में रह करके सारी जानकारी ले सकते हैं. वी प्रोवाइड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आइल्स एंड टॉयफल, GRE, GMAT, CELPIP and various abroad education entrance examination. So you can always be in touch with us. You can email on our to us and we will give you all the information related to it. Wish you all the very best. Happy learning. Bye bye. Take care.